is time to invite another guest of today's evening, Swami Sarvalokananda Ji Maharaj. Swami Sarvalokananda Ji Maharaj is a senior monk of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, a global spiritual organization which has been spreading the message of peace, harmony, friendship, brotherhood, and universal tolerance and acceptance all over the world for more than 100 years. He is a popular speaker on Vedanta philosophy, propagating the universal message of Sri Ramakrishna Paramhamsa and Swami Vivekananda. He travels length and breadth of India and abroad to promote peace and harmony through intra and interfaith dialogues and parliament of religions. Swami Sarvalokananda Maharaj embraced monastic life, joining the holy order at its Kankhal Haridwar branch way back in 1973, where he served for 12 years, where he was deeply involved in spiritual practice and the medical service of the Ramakrishna Mission Hospital. Later, Swamiji's services were required at the Ramakrishna Mission Seva Pratishthan, Kolkata, the largest medical institution of the Ramakrishna Mission in India. He served the institution with singular distinction for 22 long years, the first 10 years as its assistant secretary and last 12 as its secretary. He served the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission Mumbai as the Adhyaksha cum secretary from 2010 to 2016. He served as the head of Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, Kolkata, which is the largest center of Ramakrishna Math and Mission in the world from 2016 to April 2023. Presently, he is serving the head of the Ramakrishna Mission, New Delhi. We are privileged and honored to have Swami Sarvalokananda Ji among us today, and we eagerly look forward to his benedictory address, which will undoubtedly ignite the flame of knowledge and inspiration within us. Let us all welcome Swami Sarvalokananda Ji Maharaj with heartfelt gratitude. Om Masato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Nityurma Amritagamaya. Om Shanti Shanti Shanti. O Lord, lead us from unreal to real. Lead us from death to immortality. Lead us from darkness to light. Om San, Om Peace, Peace, Peace. Dear friends, I am very much delighted to be with you in this evening, particularly in this beautiful program, Vivekananda Vivek Shala, the summer camp organized by Indus Quality Foundation. Undoubtedly, Indus Quality Foundation has been doing wonderful work in shaping the life of the children. हमें बहुत खुशी है कि इंडस क्वालिटी फाउंडेशन बच्चों को कैसे समर्पित किया जाए, बच्चों को कैसे आदर्श नागरिक बनाना जाए, बच्चों को कैसे हम अच्छा इंसान बना सकें, इस क्षेत्र में इंडस फाउंडेशन क्वालिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आज के दिन में जो हमें आवश्यक है
वो है अच्छा इंसान, गुड ह्यूमन बीइंग। अगर अच्छा इंसान कैसा बन सब सकते हैं? अगर अच्छा इंसान बनना है, देश को आगे ले जाना है, तो जैसे अश्विनी कुमार जी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी बार बार कहा करते थे, मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, नेशन बिल्डिंग एजुकेशन। जिस शिक्षा से हम चरित्रवान या चरित्रवती बन सकते हैं, जिस शिक्षा से हम आदर्श नागरिक बन सकते हैं, एनलाइटेंड सिटीजन। और अब सभी जानते हैं कि आज केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर विश्व में आदर्श नागरिक की कमी है। इज द डेप्थ ऑफ एनलाइटन और आइडियल सिटीजन। और आइडियल सिटीजन तभी बन सकते हैं अगर स्वामी विवेकानंद जी जो शिक्षा के बारे में कह के गए हैं, वो शिक्षा पर अगर हम जोड़ दें। एंड दैट शिक्षा, वो एजुकेशन, वो शिक्षा है मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा और चरित्र निर्माणकारी शिक्षा, जिससे हमारा चरित्र का निर्माण हो सके। चरित्र के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई भी देश अगर महान हुआ होगा या महान है, तो ये देखना है हमें कि उस देश में चरित्र बहुत ही अच्छा है। चरित्र के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में हम चाहते हैं, बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाए, सार्विक विकास, सार्विक विकास होनी चाहिए। सार्विक विकास तभी हो सकता है जब हम चार पहलुओं पर जोर देंगे। और मनुष्य जीवन में चार पहलू हम देखते हैं। द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, वो एस्पेक्ट है, वो है फिजिकल एस्पेक्ट, शारीरिक उन्नति, और है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसको हमें कहते हैं बौद्धिक उन्नति। देन मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और फिर हम कहते हैं जिसको मोरल डेवलपमेंट, नैतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति। जब चारों का उन्नति हो जाती है, तब मनुष्य एक संपूर्ण मानव मनुष्य तैयार हो जाता है, संपूर्ण मानव तैयार हो जाता है। और संपूर्ण मानव का ही आज के दिन में बहुत ही आवश्यक है। वैल्यूज के बारे में हम सब कहते हैं कि आज के दिन वैल्यूज की बहुत कमी है। हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य के कमी के कारण आज देश विदेश में क्या क्या हो रहा है, जिससे हम शर्मिंदा हैं। वैल्यूज की बहुत कमी हो गई। देयर इज अ ट्रेमेंडस इरोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ऐसी शिक्षा के माध्यम से ही हम वैल्यूज को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। अगर नहीं तो फिर जैसे हमारे शास्त्र में कहा गया है, धर्मे नहीं ना मनुष्य, धर्मे नहीं ना पशु भी समान है। धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान है। अर्थात वैल्यूज के बिना मनुष्य तो पशु के समान होता है। इसलिए वैल्यूज को हमें अपनाना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन के ऊपर हमें जोर देना चाहिए। जो आई इंडस क्वालिटी फाउंडेशन जो काम कर रही है, वैल्यूज के ऊपर जोर देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि खास करके जो गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं, पिता माता हैं, उससे मैं आग्रह करूंगा कि आप भी अपने बच्चों को संस्कृत कीजिए, अपने बच्चों को वैल्यूज दीजिए। और पहले घर से ही वैल्यू एजुकेशन शुरू होती है। उसके बाद स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं,
शिक्षा मिलती है। लेकिन पिता और माता जी जो है घर में, उसको ही वैल्यू देना पड़ेगा बच्चों को। और जो पहले अवस्था में जब बच्चों को जो शिक्षा मिलती है पिता माता जी से, वही शिक्षा हमेशा के लिए उसके दिमाग में रह जाता है, मन में रह जाता है। इसलिए केवल संस्था करेगी बच्चों को संस्कृत करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पिताजी और माताजी को, द गार्जियंस, दे हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब बच्चों को संस्कृत करने के लिए। अगर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश का धन दौलत ये सब प्राकृतिक संपदा सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ा संपद है ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संपद। तो ह्यूमन रिसोर्स को हमें मजबूत करना है, अर्थात हमें अच्छा इंसान बनना है। बच्चों को अच्छा इंसान बनने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। दुख की बात है कि हम बच्चों को पहले से ही ऐसा ही कहते हैं, ऐसा ही बोलते हैं कि स्कूल में जाओ और खाली पढ़ते रहो, अच्छा नंबर हासिल करो और कुछ डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, फलाना बन जाओ, बस हो गया। और ये हमें देखना है कि मनुष्य बना है कि नहीं, रियली दे आर ह्यूमन बीइंग और सिटीजन, ये हमें देखना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी बार बार कहते थे, मेन मेन आर वांटेड, हमें मनुष्य चाहिए और तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी सभी को ही चाहते थे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैन मेकिंग इज माई मिशन, मनुष्य तैयार करना बनाना ही मेरा जीवन का व्रत है, मेरा जीवन का मिशन है। इसलिए अच्छा इंसान बने वो सब हमको देखना है और ये सब करना है। तो मैं फिर दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगा IQF को कि उन्होंने ये अच्छे अच्छे प्रोग्राम रखते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को संस्कृत करने के लिए, बच्चों को यथार्थ नागरिक बनाने के लिए और मनुष्य बनाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। Maharaj had joined amid the busy schedule of Guru Purnima. Maharaj, we are immensely grateful for the time you have given to enlightening us with your profound words of wisdom. These words have touched our souls and awakened within us a renewed sense of purpose and inspiration. It is truly a blessing and a great fortune that we, IQF, is able to host you today and got your blessings.